Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundhar Sulakshana and I will be teaching you economics. So students, today we are here to see Standard 12th Economics chapter number 6 Unemployment. As you all know, we have already seen few parts of this chapter. So today we are here to see the part 7 of the chapter. So before starting the today's portion, as usual, let us have a short summarization of the previous portion, what we have seen on the previous video. So previously we have completed the causes of the unemployment and even we saw 3 to 4 points of the measures to reduce the unemployment. So let us have a brief discussion. So lack of infrastructure facility, that was the last point that we saw on the previous video regarding the causes of the unemployment. You know that still in rural area there are so many lack of facilities such as the transportation facilities, road facilities, health and the electricity facilities and the education facilities are being seen up in a very lacking manner in the rural area, due to which the unemployment problem is been prevailing in the rural area very much. Even after that, if you are considering due to the continuous electricity supply is not being got it there in the rural area, so that the rural area is not being developed by the industrial sector also. Even many industrialists does not want to start their industry in the rural area, as agro-based portion of the raw material easily available in the rural area, and even the labor are ready to work at the we can say that lower wages, but still the industries are not ready to develop their portion in that particular rural areas, which is an important cause of unemployment in the rural area. So in this manner we have completed the causes of the unemployment. Then we have saw about the measures to reduce the unemployment, in which we have seen in the introduction manner that from the starting of the initial phase, the objective of the government was to reduce the unemployment, as the starting phase was being developed on the more emphasis of the economic growth. But on the second 5-year plan, it was being seen up that private sector were not being given more importance, but the public sectors were being given more, due to which the public sector was being given more important, for which the capital intensive method was being adopted, by which the portion of the unemployment started prevailing more. Yes, it is okay for the strong foundation of the industry on the priority base, it was being started up, it was okay until that. But now in the current situation, if you are seeing according to the current situation, the employment generation opportunity should be given, which means the labor intensive method must be adopted by the government policies. Even we have seen that on the 5th, 6th and rather than that on the 8th 5-year plan, we have seen the prime objective was being seen up for the development of the employment generation was being given more. Even the fundamental right was being considered that one citizen should get the employment opportunity according to the fundamental right, according to the constitution of the policies. So in this manner we have seen the what are the causes and how it can be found up a proper solution, that is been seen up by the measures of the reduction. So in that first we have saw the point of the public control, which means the population control. You know that the major portion of the fast development or the growth of the population is the basic reason for the unemployment. Why? When the population is increasing, due to that the labor supply also increases. As a reason, what happens? As a reason, the employment means the job seekers are more in the portion, and according to that, on the other hand, if you are seeing the slow employment development, which means the economic development, due to which the employment is also developed on the small scale, which means the accumulated portion of the employment opportunity that must be given by us is not being attained by us, due to which the unemployment is seen in a very worst manner. So due to this we can say that day by day it is become a serious issue, for which the government must take an effective way to control the population, and once the population will be controlled, then the labor supply will be less and the job seekers will be less, and due to that on the other hand the surplus resources will become more surplus, and by
by which the employment opportunity can be seen up more in the economic, so by which the unemployment can be solved. Next we have seen the increase in the economic development rate. You know that whenever the economic development is seen on that portion, overall development of the country can be seen. So for that the contribution of all the sector must be seen, public, private and the cooperative society must contribute and coordinate with each other, so that each and every year if the economic development attains, then the opportunity of the economic also get more and more. So by which we can say that the oriented plan of the employment opportunity can be developed. So effective way of removing the unemployment is the portion of the rate of economic development, because this is an constructive idea or the solution for removing the unemployment. Third, we have seen the employment oriented planning. So employment oriented planning must be done. According to the portion, you know that from the starting only the portion of the employment oriented planning was given more, but still we can say that not the lack of continuity, or due to many reasons it was not been, we can say that continued, but the government should form such policies by which the employment should be developed more, for which they have to take the contribution of the agriculture, and the capital intensive method should be removed and the labor intensive method should be given more importance. Why? Because due to that what will happen, if the labor intensive method and consumer goods are appreciated by the and motivated by the state, then the more and more production of the portion will generate the employment opportunity for the labor. Even the state should try to equivalent the capital and the labor intensive method, coordinate them and take it in a best manner by which the unemployment problem can be solved. So up till this we have seen in a very detailed manner. So today we are going to see the further portion of the chapter in a very detailed manner. So let's move on with the further portion from the PDF in the further video. So students, let us move on with the today's portion. So today we are going to see the further portion of the measures to reduce the unemployment. So last time we have covered up 3 points. So today we are going to see the fourth point, employment oriented education. So I am going to read it out, listen it out carefully. Present education system is responsible for unemployment. Present education system only provide bookish knowledge and produce clerks. So even after being graduated in commerce and management field, individual does not become capable enough for self-employment. So for a longer period of time, they have to remain employed. In order to change this situation, it is necessary to get a vocational education in the field of trade, commerce, business, agriculture and other fields. For this, a major change is needed in the present education system. Through some changes have been introduced in education system, but they are not enough. This is a fact. It is necessary to start and increase the curriculum that comprises of providing training and business-oriented education in the field of trade, commerce, agriculture and industry, so that after getting such education, it is easy to get employment. सो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करते, कहीं ना कहीं यही रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। प्रेजेंट एजुकेशन जो सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज, यानी बुक में जो कंटेंट दिया गया उतना ही नॉलेज देता है, जिसके वजह से हमें सिर्फ और सिर्फ क्लर्क मिल रहे। हु इज़ अ क्लर्क, जिसको जो काम बताया जाए वो कर दे, तो इस तरीके के सिर्फ हमें क्लर्क मिल रहे। सो इवन आफ्टर ग्रेजुएशन होने के बाद भी, कॉमर्स फील्ड से ग्रेजुएशन होने के बाद भी, मैनेजमेंट फील्ड की पढ़ाई करने के बाद भी एक इंडिविजुअल इतना कैपेबल नहीं होता है कि उसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए। सो लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड से यही रीज़न रहा कि वो अनएम्प्लॉयमेंट रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें जो नॉलेज मिला है वो बुकिश था और वो इतने कैपेबल नहीं थे वो खुद ही कुछ विचार करके कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाए। इसीलिए अगर हमें इस सिचुएशन को चेंज करना है तो इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए हमें कहीं ना कहीं वोकेशनल एजुकेशन यानी प्रैक्टिकल एजुकेशन ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, एग्रीकल्चर और अदर फील्ड में भी देना ज़रूरी माना जाता है। इवन इसके लिए एक प्रेजेंट चेंज हमारे प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में ज़रूरी है।
बट कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस तो एजुकेशन सिस्टम में देखा गया, बट जितना हमें मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, उतना इनफ ना होने की वजह से ये पोर्शन अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार होते। इवन ये एकदम सच्चा फैक्ट है, ठीक है। इसीलिए नेसेसरी है कि हम ऐसा कोई करिकुलम में इंक्रीज करें या ऐड करें जिससे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग और बिजनेस ओरिएंटेड एजुकेशन ज़्यादा प्रोवाइड किया जाए। अगर हम फील्ड जैसे कि ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री की बात करें तो इन लोगों को वहाँ पे ट्रेनिंग के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, और ऐसे एजुकेशन मिलने के बाद ही वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए रेडी हो पाएंगे और इवन वो अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार नहीं बनेंगे। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द सेकेंड पैराग्राफ। इन इंडिया, to solve the problem of unemployment and to increase the capabilities to gain employment, a revolutionary change in the educational field is necessary, which can implement an educational system with perfect human resource planning. In the new education policies of 2015 for employment generation, collaboration with industries were developed as the objective to have vocational education. Similarly, in future years, which sectors as employment opportunity has to be studied, and accordingly curriculums need to be prepared, which should also include private sector association. इंडिया के अंदर अगर हम बात करें प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए कहीं ना कहीं हमें एम्प्लॉयमेंट को गेन करने के लिए हमारी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करना नेसेसरी माना जाता है, और इवन ये रिवॉल्यूशनरी चेंज कहीं ना कहीं एजुकेशन फील्ड में आना नेसेसरी माना जाता है। इवन एजुकेशन सिस्टम में ऐसे इम्प्लीमेंटेशन होने चाहिए जिससे परफेक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज का प्लानिंग होना चाहिए। एजुकेशन पॉलिसी 2050 जो नया पॉलिसी है उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काफ़ी सारी कोलैबोरेशन जो है इंडस्ट्री के साथ देखा गया, जैसे आपको पता होगा कैंपस इंटरव्यू, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलता है, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद डायरेक्ट हमें परमानेंट कर दिया जाता है, एजुकेशन के साथ साथ हमें कैंपस से इंटरव्यू सिलेक्ट करके ले लिया जाता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी गई। इवन ये ऑब्जेक्टिव से ही वोकेशनल एजुकेशन भी देखा गया। बट फ्यूचर के कमिंग ईयर्स के अंदर ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो उसको स्टडी करके उसको भी करिकुलम में ऐड करवाना चाहिए और लोगों को उसके लिए प्रिपेयर करवाना चाहिए। सो इस तरीके से कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को भी इस एसोसिएशन में लेना चाहिए। इस तरीके से हमारा एजुकेशनल सिस्टम डेवलप करवाना चाहिए। नेक्स्ट इट इज डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. Cottage and small scale sectors have capacity to create employment with low investment. To provide employment to one person, low capital investment is required as compared to big industry. So, with the development of this type of industry, problem of unemployment can be solved. With similar capital investment, small industries can create 7.5 times more employment than big industry. India is a capital scarce and labor intense country. So development of cottage and small scale industry should be accepted as the best alternative and special initiative should be taken for its development. In the industrial policies also, these industries are given importance and various means have been taken for their development. Like production of certain goods are reserved for small scale industry. For the development of this industry, state provides monetary, technical and managerial help. So cottage and small scale sector की बात करते हैं, आपको पता है कहीं ना कहीं ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यहीं पे देखा जाता है क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव मेथड माना जाता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत लो होता है, इन्वेस्टमेंट हम जो करते हैं वो बहुत कम होता है, बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देखा जाता है। सो एम्प्लॉयमेंट अगर हमें एक पर्सन को देना है वो भी लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ बिग इंडस्ट्री की कंपैरिजन में, तो वो कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दे सकता है। इसीलिए कहीं ना कहीं डेवलपमेंट इस टाइप के इंडस्ट्रीज में ज़्यादा देखा जाना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं जो है बिग इंडस्ट्री जितना हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता एम्प्लॉयमेंट, उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोवाइड करके देता है। इंडिया की अगर हम बात करते तो इंडिया में लेबर
इंटेंसिव ज़्यादा देखा जाता है, यानी लेबर की सप्लाई ज़्यादा है, जबकि कैपिटल की सप्लाई बहुत ही कम देखा जाता है। स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री में जो कैपिटल हमें चाहिए, उस कैपिटल से 7.5 टाइम्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है कंपैरेटिव टू द बिग इंडस्ट्री। सो इस तरीके से कहीं ना कहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जो डेवलपमेंट है ये ज़्यादा देखी जानी चाहिए, और ये एक बेस्ट अल्टरनेटिव है, और इवन स्पेशल इनिशिएटिव इसकी डेवलपमेंट के लिए लिए जाना चाहिए। अगर इंडस्ट्रीज पॉलिसीज की अगर हम बात करते तो ये इंडस्ट्री को अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया और अगर बहुत सारे मेजर्स लेके इसको डेवलप करने की कोशिश किया गया तो प्रोडक्शन जैसे कि सर्टेन गुड्स जो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं हमें जो है डेवलपमेंट ऑफ ये इंडस्ट्रीज ज़्यादा होता हुआ नजर आएगा। एज अ पोर्शन क्या होगा, तो स्टेट जो भी इसके लिए मॉनेटरी और टेक्निकल हेल्प और इवन मैनेजरल हेल्प प्रोवाइड करेगा, उसकी डेवलपमेंट ये इंडस्ट्री में ज़्यादा देखा जाएगा। इन शॉर्ट इट कैन बी सेड दैट कि कहीं ना कहीं हमें स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को ज़्यादा डेवलप करना चाहिए। सो नेक्स्ट इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। सो आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली। Indian rural area have less employment opportunity than urban area, and one reason responsible for this is poor infrastructure facility in rural area. So if government extend the services like education, health, housing, electricity, road and business training centers and other infrastructure facilities, then with the help of local resources, employment can be made available to individual nearer to their residency. With the development of the infrastructure facility, new employment opportunity will increase. Employment will also generate in agriculture and allied sectors, so the problem of unemployment will reduce. So कहीं ना कहीं हमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को बढ़ावा देना चाहिए। इंडिया में यू हैव सीन दैट के रूरल एरिया में लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्यों है, अर्बन एरिया में ज़्यादा और रूरल एरिया में क्यों, तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न की अगर हम बात करें तो विलेज में कहीं ना कहीं पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देखा जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट को सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो है लोकल रिसोर्सेज के हेल्प से वहाँ प्रोवाइड करवाना चाहिए, जिसके हेल्प से एम्प्लॉयमेंट इजीली इंडिविजुअल जो उसके नियरर रहते उनको हेल्प आउट मिल पाए। तो इस तरीके से क्या होगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को डेवलप किया जाए तो उसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। एज ए रिजल्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट जो एग्रीकल्चर में होता है उसके साथ साथ एलाइड सेक्टर के साथ साथ दूसरे सेक्टर्स में भी रूरल एरिया में देखा जाएगा। एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे रूरल एरिया में कम होता हुआ नजर आएगा। सो नेक्स्ट इट इज स्पीड एंड एक्सपेंशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। High population growth in India, high dependency of population on agriculture creates disguised unemployment, and at the same time uncertain monsoon and insufficient irrigational facility creates seasonal unemployment. Solution of high dependency of population on agriculture and capability of shifting of this surplus people to another sector has not became feasible. So high population growth इंडिया के अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम माना जाता है, इसीलिए हाई डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है, यानी जितने लोगों की जरूरत है उससे 3-4 लोग काम करते बट उनकी प्रोडक्टिविटी जीरो नजर आती है। और उसी सेम टाइम में अनसर्टन मॉनसून की कोई सर्टनिटी नहीं होता, कभी भी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, और हमारा इरिगेशनल फैसिलिटीज बहुत ही कम देखा जाता है, और इस रीजन की वजह से सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी गांव के अंदर देखा जाता है। तो सॉल्यूशन इसका क्या है कि हाई डिपेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में, इसीलिए हमें इतना कैपेबिलिटीज होना चाहिए कि सरप्लस पीपल, अगर ज़्यादा पीपल और एग्रीकल्चर वहाँ पे उनसे फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा और सीजनल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट दिखे तो उन्हें एक जगह से लेके दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए,
दूसरे सेक्टर में शिफ्ट किया जाए, यानी ये एग्रीकल्चर नहीं तो दूसरा कोई काम में उनको शिफ्ट किया जाए, बट नॉट बिकम्स फैसिएबल, जैसे हम सोचते हैं उस तरीके से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हैंस to solve the problem of unemployment in rural area, revolution should be speed up and effort should be made to extend it to more area with an increase the opportunity of employment. So कहीं ना कहीं ये जो problem of unemployment rural area में देखा जाता है, इसको कम करने के लिए या इसमें डिक्रीज लाने के लिए हमें कहीं ना कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन, जो अनएम्प्लॉयमेंट को रिडक्ट करने के लिए कुछ विलेजेस में देखा गया है, उसको स्पीड अप करना चाहिए, यानी उसको स्पीड अप करके सारी जगह पे पहुंच पाए उतना एफर्ट्स लगाना चाहिए, जिससे अपॉर्चुनिटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा जो है रूरल एरिया में देखा जा सके। सो इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन हर जगह पहुंचे, इतना एफर्ट गवर्नमेंट को लगाना चाहिए। सो नेक्स्ट पैराग्राफ इज दैट, but from this paragraph we are going to see on the next video. Up till this we are going to see up today. So let us have a short summarization of the portion that we have seen today. Students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So आज हमने जो है और जो एक्सटेंडेड पोर्शन यानी और 3-4 पॉइंट को डिटेल में देखा जिस टॉपिक के अंदर, तो मेजर्स टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोर्शन, बट इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड देन नो प्रॉब्लम, लेट अस हैव अ शॉर्ट डिस्कशन ऑफ द पोर्शन दैट वी हैव सीन। सो वी हैव सीन अबाउट द एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन. After that, development of small and cottage industries. Then we have seen the extension of infrastructure facility, speed and the expansion of green revolution in agriculture. So let us have a brief discussion of one by one point. So first topic, so employment oriented education. कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन, आज भी हमारी इंडिया में जो एजुकेशन हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, ये जो है इतना स्किल्ड या वोकेशनल नहीं है। हमें आज भी बुकिश नॉलेज मिलता है और सिर्फ क्लर्क रेडी हो रहे हैं, उससे ज़्यादा ट्रेड, कॉमर्स और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सेक्टर्स पे जितने स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है, जो खुद की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाए, वैसे लेबर्स कहीं ना कहीं हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो उसकी रीज़न कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, हम एजुकेटेड होने के बाद भी अनएम्प्लॉयड है, तो क्योंकि उसका रीज़न ये इनइफेक्टिव एजुकेशन के वजह से देखा गया है। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे करिकुलम के अंदर ऐसी सारी इफेक्टिव पोर्शन को इंक्लूड करना चाहिए जिससे हमारी एजुकेशन इफेक्टिव बने। पर्टिकुलर ट्रेनिंग हमें पर्टिकुलर सेक्टर्स पे मिलना चाहिए जिससे हमारी स्किल और वोकेशनल एजुकेशन बेस्ट हो पाए। Rather than that, आजकल आपको पता है इंडिया के अंदर न्यू एजुकेशन सिस्टम 2015 में जो एस्टेब्लिश हुआ था, उसके बेसिस में कहीं ना कहीं हमें जो है बाय द वे ऑफ एजुकेशन ही जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट उधर ही हमें ट्रेनिंग किया जाता है और आगे कहीं ना कहीं जॉब की अनएम्प्लॉयमेंट ना हो और एम्प्लॉयमेंट मिल जाए उसकी कहीं ना कहीं फैसिलिटी किया जा रहा है। बट स्टिल हमें जितना इनाफली वो पोर्शन मिलना चाहिए उतना इनाफ में वो पोर्शन देखने को नहीं मिल रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ऐसा कोई प्लानिंग करना चाहिए और इवन मोर, एज आई सेड, मोर इफेक्टिव करिकुलम को इंक्लूड करना चाहिए। उन्हें कहीं ना कहीं स्टडी करना चाहिए कि कौन से एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, कौन सी इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, उस इंडस्ट्रीज के ऊपर बेस करके उसके रिलेटेड करिकुलम कहीं ना कहीं एजुकेशन के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। यानी हमारी एजुकेशन सिस्टम को और इफेक्टिव बनाना चाहिए, ना कि सिर्फ थियोरेटिकल बट प्रैक्टिकल बोथ विजन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स एज इम्पॉर्टेंट कंटेंट। उनको कहीं ना कहीं प्रॉपरली हर चीज़ का मिलना चाहिए, नॉलेज और स्किल मिलना चाहिए जिससे वो फ्यूचर में हर पोर्शन को अपने आप ही सेल्फ रेलेवेंट होके कहीं ना कहीं टैकल कर पाए। वैसा एजुकेशन सिस्टम होना
चाहिए। नेक्स्ट वी हैव सीन द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। यू नो दैट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ज़्यादा जो है प्रायोरिटी जो बिग इंडस्ट्रीज को दिया था, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा नहीं देखा जाता, कैपिटल इंटेंसिव मेथड ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बट वैसे पोर्शन को हटा के कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो कैपिटल ओरिएंटेड से होके लेबर ओरिएंटेड वाली पोर्शन पे ज़्यादा मोटिवेशन देना चाहिए। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री की बात करते हैं, जितना बिग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट होता है उससे कम इन्वेस्टमेंट यहाँ चाहिए, और 7.5% जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा ये प्रोवाइड करता है बिग इंडस्ट्री से। इसलिए गवर्नमेंट को ज़्यादातर मोस्ट इफेक्टिव पॉलिसीज और प्लानिंग इसको डेवलप करने के लिए करना चाहिए। अगर कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप होता है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के इंक्रीज के साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आएगा। देन वी हैव सीन द इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एक्सटेंशन। सो एक्सटेंशन करना चाहिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की। यू नो दैट हमने कॉजेज में भी ये देखा था, कहीं ना कहीं रूरल एरिया में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ठीक से नहीं मिल पाता है। एजुकेशन ले लो, हेल्थ ले लो, इलेक्ट्रिसिटी ले लो, ट्रांसपोर्टेशन ले लो, रोड की फैसिलिटी, जो बेसिक फैसिलिटीज होती है वो भी ढंग से नहीं मिल पा रहा है। इसी रीजन की वजह से जो है लोग अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करते। तो इस रीजन के वजह से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है ज्यादातर रूरल एरिया में एम्फसाइज करना चाहिए। एज अ रिजल्ट क्या होगा, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा होगा उतना अर्बन एरिया के कंपैरेटिव में रूरल एरिया में भी लोग मोबिलिटी के लिए रेडी होंगे। वंस द मोबिलिटी विल बी रेडी, तो उससे दूसरे हैंड पे क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की वजह से दूसरे टाइप के एम्प्लॉयमेंट भी कहीं ना कहीं रूरल एरिया में देखने को मिलेगा, और एज अ रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाएगा। सो इस तरीके से भी हम अनएम्प्लॉयमेंट को हटा सकते हैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हर जगह प्रॉपरली रूरल एरिया में मिले तो। नेक्स्ट वी हैव सीन द स्पीड एंड एक्सपेंशन ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। यू नो दैट कहीं ना कहीं इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, और मोस्ट ऑफ द पीपल पॉपुलेशन ग्रोथ कहीं ना कहीं विलेज साइड में ज़्यादा देखा जाता है कंपेरेटिव टू अर्बन, क्योंकि अर्बन में लोग ही बहुत कम है। सो पॉपुलेशन जितना ज़्यादा ग्रो होता है उतना ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेड हो जाता है। जितने लोग एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेड होंगे उतना डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है, और एज ए रिजल्ट इरिगेशन फैसिलिटी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है, अनसर्टन मॉनसून है, ऊपर से डिस्गाइज्ड और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम ज्यादा इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रीवियस पॉइंट पे देखा वो हमें डेवलप करके देता है, और रेदर देन दैट गवर्नमेंट को ऐसा कोई प्लानिंग करना चाहिए जो एक्सेसिव यानी सरप्लस पॉपुलेशन है उसको एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे ट्रांसफर यानी जॉब के लिए ट्रांसफर करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। बट ये इतना इजीली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ग्रीन रेवोल्यूशन जो आजकल सिर्फ सर्टेन कुछ स्टेट्स के थ्रू ही एंजॉय किया जा रहा है उसको एफर्ट्स लगा के हर एक इंडिया के हर एक विलेज के कॉर्नर में पहुंचे, ऐसा कहीं ना कहीं उनको एफर्ट्स करना चाहिए। वाई अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन हर जगह पहुंचता है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है एफर्ट लगा के, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, तो एज ए रिजल्ट वहां पे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जितना प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा देखा जाएगा, और एज ए रिजल्ट अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। ऐसा हमने डिटेल में देखा। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने स्पीड अप और एक्सटेंशन वाला टॉपिक देखा वो हाफ तक ही देखा है, रिमेनिंग हाफ हम नेक्स्ट पोर्शन में देखेंगे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टुडेज पोर्शन इन अ very well manner. Rather than that, I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.